देश में प्रदर्शनियों के प्रमुख आयोजनकर्ता इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया 18 से 20 अक्टूबर 2023 के बीच बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट इंडिया एक्सपो के 9वें संस्करण के आयोजन की तैयारियों में जुटा है। वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट इंडिया कॉन्क्रीट उद्योग के लिए देश की अनूठी प्रदर्शनी है, जो विश्वविख्यात वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट लास वेगास के भारतीय समकक्ष के रूप में कार्यरत है। Lokpal Kaur from Sika India Private Limited. I am also the industry captain for the CIDC award, which was this year. And the world of concrete is a great opportunity for all in the construction industry to actually experience, learn and share about new dimensions in concrete technology, equipment, materials, testing. I think the organizers, Informa, have done a brilliant job to bring it to India again, and it will reach more heights about sustainability in construction as well as innovations through various technologies. So, मेरा नाम आलोक रंजन है. I am a partner at Torrent Advisors. We primarily work with private, government, public sector and multilateral development agencies in the management advisory space. For World of Concrete kind of events, this has been, I would say, the event जो globally which has been very popular. Now we are seeing the next version of the event in India. So I briefed you about the requirement of the sustainability basically. Luckily for us, what has happened is the measures of the sustainability is also an economical measures. In the sense, even for the roads for that matter, if you are constructing the road, अभी क्या है, we will be using the cement. Say for example, cement concrete road जो है, cement road concrete road maintenance free है, and also it is it doesn't have durability issues. It will be lasting for a long time. अभी ये cement concrete road आप जो use करते हैं, वो concrete में industrial waste जो है, say for example the flash, slag, ये जो है industrial waste है, and that waste can be used and the cement can be replaced. By doing that, what happens is it's easy for us to economize the roads. ये जो है, and also by switching over to the concrete road rather than the flexible bitumen road, what we are talking about, what happens is that वो जो बहुत गड्ढे होते हैं, उसका maintenance requirement है, वो कम होते जाते हैं. So the measure of sustainability, हम जो sustainability का बात करते हैं, वो climate emergency हो रहा है. Measure of sustainability, luckily for us, is also the measure of economy. That it's possible for us to get the economic result from that. So, and also there are a lot of techniques nowadays used. अभी तो तोमरे साहब ने explain किया कि we are using the white topping technology. उसमें तो हमको ज़्यादा entire road को replace करने का ज़रूरत नहीं है. We can be doing the white topping on top of the existing road itself. And आजकल तो even ultra high performance concrete अभी बात कर रहे हैं. Ultra high performance concrete में we are going to get the strength of even up to 200 MPa. Normally जो concrete होता है 50 to 60 MPa ही होता है. अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में 200 MPa होता है. बहुत शुक्रिया आप सबका, आप यहाँ आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्र के लिए आप में इंटरेस्ट है, आप रुचि रखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो. मैं मोटर्स के बारे में बात करूँगा, जैसे वॉल पुट्टी हुआ, प्लास्टर्स हुआ या टाइल एडेसिव्स हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, ये कंक्रीट में नहीं आती लेकिन कंक्रीट के साथ ही आती है. मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपके घर में जब कोई चीज़, कोई पेंट हो रहा है, कोई टाइल्स आप चेंज कर रहे हो, तो क्या आप देख रहे हो कि मीडिया में लेटेस्ट क्या आप गूगल कर रहे हो? आप हज़ार चीज़ के लिए गूगल करते हो, लेकिन क्या आप ये टेक्नोलॉजी गूगल कर रहे हो? आप नहीं गूगल करते, इसलिए आपको नहीं मालूम होता कि लेटेस्ट क्या हो रहा है. जैसे प्लास्टर, क्या आपको पता है रेडीमेड प्लास्टर आता है, वो मेसन या मिस्त्री आपके घर में आएगा, सैंड सीमेंट को मिलाएगा. अब वो कितना स्किल्ड है हमें मालूम नहीं. अगर वो सीमेंट को कम मिलाएगा तो आपका प्लास्टर उखड़ आएगा, क्योंकि उसमें वो एडेजन होगा नहीं.
अगर वो सीमेंट को ज़्यादा मिलाएगा तो आपके दीवारों में पेंटिंग करने के बाद क्रैक आएंगे और वो क्रैक रिपेयर करने के लिए आपको फिर खर्चा करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आप बाजार से रेडीमेड प्लास्टर ले रहे हो जो फैक्ट्री में बना है, जो परफेक्ट है, और आपके मिस्त्री को सिर्फ पानी डालना है और उसको यूज़ करना है, यानी कोई गलती नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको पता है कि वॉल पुट्टी जो है वो सस्ती आ सकती है, ग्रे में कलर में आ सकती है, और उसमें आपके पैसे बच सकते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे वॉल पुट्टी वाइट क्यों है? तो वॉल पुट्टी, बहुत लोग बोलते हैं कि वॉल पुट्टी वाइट इसलिए है कि पेंट अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, वो पुट्टी नहीं है, प्राइमर है, और प्राइमर वाइट ही है। तो आपका पेंट बहुत बेहतरीन दिखेगा। अगर प्लास्टरिंग के बाद आप ग्रे पुट्टी लगाते हो, वो स्मूथ होती है दीवार, उसके बाद प्राइमर लगाते हो और पेंट लगाते हो। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप पैसे बचा सकते हो और बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पा सकते हो। हमारे 2 दुश्मन हैं, रिपेयर और रीवर्क। रीवर्क मतलब हम करने के बाद हमें पता चलता है कि अरे हमने गलत किया, सबको उखाड़ो फिर से करो, ये हमारा दुश्मन है। और रिपेयर मतलब क्या? अच्छा बनाया, बिल्डिंग हो गया, सब रेडी हो गया, 1 साल में वापस रिपेयर के लिए आ जाता है। क्यों? हर रिपेयर और हर रीवर्क में हम सीमेंट वेस्ट कर रहे हैं, हम रेती वेस्ट कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम पानी वेस्ट कर रहे हैं। बॉस, कंक्रीट और हम में, या सीमेंट और हम में एक सिमिलर फंक्शन है, हम दोनों को खारा पानी नहीं चलता। आपको खारा पानी चलता है? नहीं चलता, हमको फ्रेश पानी चलता है। सीमेंट को भी फ्रेश पानी ही चाहिए। तो फ्रेश पानी दुनिया में कम है, हमें पीने के लिए चाहिए, तो वही सीमेंट यूज़ कर रहा है। और अगर सीमेंट को आप पानी दे रहे हो और उसमें रिपेयर और रिवर्क कर रहे हो, घड़ी घड़ी काम कर रहे हो, तो आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, ये आप सोचो। आज जो हम यहाँ पे मिले हैं वो वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट जो इवेंट हमारी जो हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मिले हैं। एंड ये हमारा शो जो हो रहा है वो 9th एडिशन ऑफ द शो है, और ये मुंबई में मेस्को में होने वाला है इस साल। और 200 कंपनीज आ रही है, जो लास्ट ईयर अराउंड 160 कंपनीज थी। वी हैव गॉट इवन बिगर रिस्पॉन्स, लॉट मोर कंपनीज आर कमिंग इन। एंड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री से अराउंड 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर वी हैड अबाउट 6,000-6,500 लोग आए थे। 6,500 से नियरली जो इंटरेस्ट दिख रहा है हमको 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आएंगे। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि जैसे ये इंडस्ट्री मूव हो रहा है जो राइट डायरेक्शन में, आज इंडिया का जो इकोनॉमी है स्पेशली which is going to be a 5 trillion economy, उसमें से 1.4 trillion is going to come from this construction industry, which is going to be nearly 1/3 of our overall economy. So इतना जो ग्रोथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो रहा है ये हमारी इवेंट में सिग्निफाई हो रहा है। हमको सारी जगह से सपोर्ट आ रहा है। इस बार गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेक होल्डर से, BMC से यहाँ पे आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आ रहा है, तो अलग अलग बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आ रहा है। सो दिस इज शोइंग और इकोनॉमिक थ्राइविंग इन कंस्ट्रक्शन बहुत जगह पे हो रहा है। कंक्रीट का जो यूज़ है वो बढ़ रहा है इससे, और कंक्रीट की कॉस्ट भी कम हो रही है। उसकी नई नई टेक्नोलॉजी जो डिस्प्ले पे है वो आप जो यूज़ कर सकते हो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सारी हमारे शो में मिलेगी। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी आर हैप्पी कि ये शो एक इंडिया को एक अलग हम एक छोटे रोल में प्ले करें कैटलिस्ट की तरह, जिसको इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ओवर द नियर फ्यूचर। G20 के बाद में काफ़ी देश इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कितनी कंपनियां इंटरेस्टेड है आप? इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जो आपने सुना, वी हैव अबाउट 10% इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जो यूरोप से, जर्मनी से है, फ्रांस से है, इटली से है, US से कंपनीज आने वाली है ये शो में। सो अलग अलग G20 नेशन से भी पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है ये शो में। सुझाव है आपका, जरा ओपिनियन। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे गड्ढे भरने में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में है। प्रीवियसली हम लोग कोल्ड मिक्स से भरते थे, अभी भी ऑल ओवर इंडिया कोल्ड मिक्स से भरा जाता है। एक तो टेक्नोलॉजी कोल्ड मिक्स, दूसरा जो टेक्नोलॉजी है मास्टिक, तीसरा टेक्नोलॉजी है रैपिड हैंडिंग कंक्रीट, चौथा टेक्नोलॉजी है जियो पॉलीमर कंक्रीट। ये अलग अलग टेक्निक्स है जिसे हम गड्ढे भर जाते हैं, वेयर वी कैन fill the portals with all these different technologies wherever the portals occur on roads.
For example, nowadays we had used rapid hardening concrete. रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट टेक्नोलॉजी जैसे हम गड्ढे भरते हैं, वो एक बार गड्ढे भरने के बाद 6 घंटे में हम लोग ट्रैफिक वी कैन ओपन फॉर ट्रैफिक आफ्टर 6 आवर्स. जियोपॉलीमर कंक्रीट इज यूज वेयर पोटल्स ऑकर्स ऑन कंक्रीट रोड्स. जब भी हम जियोपॉलीमर कंक्रीट से गड्ढे भरते हैं, वी कैन ओपन दैट विद इन 1 आवर. सो अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग टेक्निक अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है. सिविल इंजीनियर को खाली देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ कर सकते हैं. अभी काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मार्केट में है, और ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर आप गड्ढे भरते हैं तो वो दोबारा गड्ढा नहीं होता है. या फिर जब आप सड़क बनाते हैं तो हम लोग ऐसी सड़क बनाना चाहिए कि एक बार सड़क बनाने के बाद उसके ऊपर गड्ढे नहीं आना चाहिए. जैसे मैं बता रहा था अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग. अगर आप अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग से सड़क बनाते हो तो एक बार अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग से अगर आप सड़क बनाते हो तो उसके ऊपर एक भी गड्ढा नहीं आता है. अगर आप सड़क कंक्रीट रोड से बनाते हैं तो कंक्रीट रोड पर भी गड्ढे नहीं आते हैं. ये एक्सपीरियंस बताता है. तो दोनों में कास्ट का डिफरेंस कितना है जो आप बता रहे हैं, दोनों तकनीक? नहीं, आप कंक्रीट रोड जब हम नया रोड बनाते हैं वो हम लोग कंक्रीट रोड यूज़ करते हैं. जब हमें रिपेयर करना होता है, रिहेबिलिटेशन करना होता है, तब हम लोग अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग यूज़ करते हैं. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा जो अपना मानना है, जो मेरी एक यार्ड स्टिक है, उसके हिसाब से बहुत सफल रही. और सबसे बड़ी सफल इसलिए रही कि बहुत हेल्दी इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि जो हमारे स्पीकर्स आए वो बहुत अपने अपने इंडस्ट्री के लीडर्स हैं. और सबसे बड़ी बात ये आई कि मीडिया बहुत अच्छे नंबर्स के अंदर टर्न आउट हुआ है, और मीडिया ने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और बहुत अच्छी पेशेंस दिखाई है. क्योंकि ये सेक्टर को अगर हमने आगे लेके जाना है तो उसमें मीडिया का एक बहुत अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप लोगों के पास जो एक लिखने की ताकत है वो किसी और के पास नहीं है. और ये सेक्टर तो मेरे ख्याल से सिर्फ भारत का ही नहीं, हर कंट्री के अंदर इकोनॉमिक, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका इंजन ऑफ ग्रोथ वो है, लाइफलाइन है हर इकॉनमी की. और हमारा इवेंट जो 18 से 20 अक्टूबर में आने वाला है, और उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई में इवेंट है और मुंबई का मीडिया जब आएगा तो वो सेक्टर के बारे में भी आगे बात करेगा. और जो आपने अभी डिस्कशन में सुना होगा कि मेन फोकस जो हमारा इस इवेंट का इस साल का हमने पोजीशनिंग की है, हर इवेंट की एक पोजीशनिंग होती है, उसको हमने बिल्कुल एक नया दिशा दी है, और वो है टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी पे हमने बहुत फोकस रखना है इस बार, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है जो भारत को और देशों के मुकाबले आगे लेके जा सकता है और कम समय के अंदर. और सबसे बड़ा, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि बहुत ट्रेडिशनल तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से मटेरियल्स का यूज़ होता है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कम समय के अंदर बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ला के देंगी. अब जैसे प्रीकास्ट है, प्रीकास्ट अब जितने भी मेट्रोज़ के बन रहे हैं या टनल्स बनती हैं, उसमें सब प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. हम लोग रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं कि कैसे रोबोटिक्स या ऑटोमेशन हमारे साइट्स में काम आ सकता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे काम आ सकती है. और कल हमारी अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमें एक आइडिया और मिला कि ऐसे भी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो जैसे हमारे बॉडी का स्कैन होता है, वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स का स्कैन करती हैं मशीन, कि उसमें ये बता दें कि इसमें क्या कमी है और क्या इसके अंदर उसमें करेक्शन किया जाए. तो मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं. और ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले वेस्ट में टेक्नोलॉजी आती है, फिर भारत में आती है, आने वाला समय ऐसा रहेगा कि भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भारत की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होगा.